Hello, my dear students and all my viewers. So, first of all, I would like to wish you all a very happy new year 2023. Happy and safe new year too. So, now let's come to the point. Why I'm making this video is I actually wanted to communicate and to give my ideas to those parents, like those parents of my students, obviously. And I wanted to share my thoughts with them, and I actually wanted to get connected with them. So for them only this video is specially for the parents of my students. ये वीडियो मैं बना रही हूँ अपने students के parents के लिए, या फिर जो मेरे students नहीं भी हैं, all the children out there, I'm making this video for them. I actually wanted to say this to the parents, like let's discuss about an idea. This idea is about teenage. So what we call a teenagers. Teenage क्या है? So have you heard about 11, 12, the counting 11, 12, 13. So why 11, 12 and 13 and then 13 to 19 and 20. 20 it's not a teenage but 13 to 19. The period between 13 years to 19 years. And why we need such type of sessions like this? हमें ऐसे sessions की ज़रूरत क्यों है? Because we really do not understand our children. We really do not understand our teenagers. हम सच में उनको अच्छे से नहीं समझते. And why this is so? Because we have created a gap between them and us. हमने क्या किया है कि उनमें और अपने आप में एक ऐसा gap बना लिया है. And this gap, unfortunately, has been filled by this COVID phase and the smartphones, which are technology with privacy. Mind it, technology with privacy. And that has taken the place of us, like the parents. And we are not understanding, we are not ready to understand that. Because we are very comfortable in our own zones. हम लोग अपने अपने zones में बहुत comfortable है. हमें लगता है कि अरे we have spent a lot of money for them. हमने उनके लिए बहुत सारे पैसे स्पेंड किए हैं. कभी बायजूस के क्लासेस करा दिए हैं, कहीं किसी को कहीं पर एनरोल करा दिया है, किसी ने वाला में एनरोलमेंट दिला दिया. I'm just taking the names. It's okay if you are providing them the facility. It's okay, but just providing them a smartphone and letting them be is not okay. So here we need to understand it, that if we are providing them a smartphone and we are not getting a reality check, I am sorry, this is not serving our purpose. Only getting them enrolled in something good, it's not serving the purpose. You have to be there at the end of the time. How? I'll prove it. Just answer my one little question. Again, I will ask you a silly question. When our toddlers, our youngsters, when they were a child, अगर वो जब बच्चे थे, that time पे जब उन्होंने छोटे छोटे silly questions पूछे थे, क्या आपने उनको scold करके आप उसको रोक नहीं दिया था उस क्वेश्चन को कि क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये कैसा vulnerable क्वेश्चन है, don't ask such type of stupid questions, don't waste my time, I don't have time for such kind of questions. आपने अगर आप वर्किंग है तो आपने बोला होगा अरे मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए. आप लोग अगर घर पे बैठे भी हो, अगर आप होम मेकर्स भी हो, फिर भी आपने बच्चों को स्कोर करके बोला होगा कि ये क्या बकवास क्वेश्चन है. आपने उनको उनके आंसर्स नहीं करे होंगे. एंड ऑब्वियसली दैट टाइम पे जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जो सेंसरी मोटर स्किल्स है वो डेवलप होते रहते हैं. तो वो चीज़ों को लेकर के आप बड़ा क्यूरियस फील करता है. और सच पूछिए तो वो स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं होते, वो बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे बच्चे पूछते हैं. तो उस टाइम पे तो आपने उनको मना कर दिया डांट करके. अब वो क्या हो गया कि दैट टाइम पे जो बच्चों के आंसर्स आपने करे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके इमेज बन जाता है और वो सही हो जाता है इमेज वो. और वही इमेज हमारे यूथ तक एज तक आते आते, यानी हमारे पूरे लाइफ के लिए वो सेट हो जाता है हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में और हमारे मेन ब्रेन में. एंड हम लोग उसी चीज़ को जा करके आगे लाइफ में अपने फोकस करते हैं. और जो फीडबैक हमें मिला होता है तो हमारी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट के टाइम पर वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस उसमें हो जाती है. बिकॉज वी आर वेरी लेजी टू आंसर दोज क्वेश्चंस. हम लोग बहुत लेजी फील करते हैं बच्चों के आंसर्स करने में. तो नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा ना करें. जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो उस टाइम पे उनके छोटे छोटे सिली क्वेश्चंस के आंसर करें.
ठीक है, ये बहुत फायदेमंद होता है। अब जिन बच्चों के पेरेंट्स ने उनको कोई आंसर नहीं दिया है और वो चीज़ उनको नहीं पता, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी अ बिग ऑब्स्टिकल इन देयर लाइफ्स। तो अभी राइट नाउ व्हेन दे आर इन टीनेजर्स, जब वो टीनेज में आ चुके हैं एंड दे आर अबाउट टू लाइक एंडेवर इन देयर रियल लाइफ, जब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, जब वो टीन एज में हैं, तो उनको रियलिटी क्या होती है, बाहर में जो कॉम्पिटिटिव फेज है उसको फेस करने में प्रॉब्लम्स ना आए। तो अब हमें क्या करना है इज लाइक इस एज में जस्ट वी हैव टू फील दैट गैप। हमने वो जो गैप बना के रखी है ना, ठीक है, पेरेंटिंग, लविंग, पैम्परिंग योर चाइल्ड इज ऑलवेज गुड, बट वी ऑल्सो हैव टू लाइक इरेज दैट गैप, वी हैव टू फिल इट। तो हाउ विल वी फील इट, हम लोग उस गैप को कैसे भरें? By spending our time, our quality time with our children. Yes, we have to spend our quality time with them. हमें अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताना होगा, और we have to understand them, what they want, what they actually want, what they are facing in their lives, in their schools, in their coachings, in their like whatever circumstances they are facing. तो हमें उस चीज़ को जानना होगा। कैसे? Don't do this, don't do that. No. We have not to be, we don't need to be Hitler. हमें हिटलर बनने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे तो आके वो आपसे चीजें छुपाने लगेंगे। Understand? So we have to be very polite with them. We have to be friend of them. हमें उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती with children? Why? How? Yes. How? And if you will ask directly, you will ask the question that what's the problem with you? No, they are not going to tell you the problem. They are not going to tell you. You have to understand. You have to spend time with them. You have to read their minds, you know? And you have to be polite. So you better understand what I'm saying. Second thing is that we need to understand that how to fill that gap first. So there is a word moral development. Have you definitely know about it. आप सबको पता है what is moral development, and have we worked on that part? क्या हमने इस part पे work किया है? No, we haven't. हमने क्या किया है? I'll tell you. Like it's possible that you have provided them a very good parenting, a very good healthy environment in your houses, and definitely a very good upbringing, but have you provided them something moral development, something morally corrected, how to be morally corrected? No, we haven't. Because where I am standing and I am seeing the world, जहाँ से मैं देख रही हूँ अपने टीनेजर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रही हूँ, मुझे पता है, being a teacher, I'm just reading them. So there is a gap. And where it is? जब हमारे बच्चे लाइक जो हम जनरेशन्स हैं, जो मेरी जनरेशन है, ऑब्वियसली जो पेरेंट आप लोग मुझे वॉच कर रहे हो, हमने क्या किया है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, स्कूलों में जाते हैं, लाइक किड्स स्कूल में, प्ले स्कूल में, मॉन्टेसरीज में, तो वहाँ पर जाकर के हमने टीचर्स को, अगर सपोज किसी टीचर ने बच्चे को के ऊपर येल किया, उनके ऊपर चीखा है, चिल्लाया है, तो हम क्या करते हैं? हमने ये नहीं देखा कि टीचर क्या कहना चाहता है, हमने इमीडिएटली एक स्टेप आगे बढ़ करके वहां गए हैं एंड टीचर के ऊपर वापस से चिल्ला दिया है। सो इससे क्या हुआ है, टेम्पररी बेस पर हमारी ईगो जस्टिफाइड हो गई, हमारी ईगो सेटिस्फैक्शन हमें मिल गई है। वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि अरे वाह, मेरे बच्चे को डांटा है, मैं इसकी खबर लगाऊंगी। बट क्या इससे उस बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे जो असर पड़ा है, हम उसके बारे में सोचते हैं? He will never respect his teacher. She will never respect his teacher. Trust me. क्योंकि उसे लगता है कि अरे ये हमसे ऊपर कैसे चला गया, ये उसी टाइम पे हमने उनके दिमाग में डाल दिया। तो when you will not respect the teacher, how will they respect them? They will not. And ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, I'm not telling you to feed that. मैं ये नहीं कह रही कि आप वापस से वहाँ पे चले जाओ. Obviously this is child-centered education and we have to be vocalized about it. But in the same scenario, we have to be careful about the moral development of our child. हमें अपने बच्चे के moral development के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ टीचर के ऊपर नहीं आने वाला, ये उसके फ्यूचर लाइफ में उसके ऊपर भी आएगा, ये आपके ऊपर भी आएगा। एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट, दिस इज द लैक, यही पर कमी। सो हाउ वी हैव टू वर्क अबाउट इट? डेफिनेटली बच्चे की मोरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना भी हमारा ही दायित्व है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर्स आर डूइंग देयर पार्ट्स, इफ नॉट यू आर डूइंग दैट पार्ट।
घर पे आप कर सकते हो. Just don't let them find a gap. So in this present scenario, we most importantly need to learn how to say no to our child. हमें आज के डेट में सीखना पड़ेगा कि अपने बच्चों को नो कैसे कहें. अब ये क्या है? What's this no? So see, there's something like how much, no matter how wealthy we are, no matter how prosperous we are, हम कितने संपन्न हैं, हम कितनी अच्छी फैमिली से आते हैं, कितने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, no matter about that. Just don't discuss in front of your child about your economical condition. अपने economical condition बहुत अच्छी होने की बात अपने बच्चों के सामने बोलना, somewhere around you are not getting that, you are making him or her egoistic, we are making him or her very very comfortable. आप believe me, वो अपने फ्यूचर में किसी भी बैड सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगा. आप उनको कमज़ोर बना रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो. अगर आपका बच्चा, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके बच्चे के पास MI का फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है, डजेंट मैटर, कोई भी फ़ोन है. अगर वो उससे बेटर वर्जन अपने फ्रेंड के पास देखता है और आकर के आपसे डिमांड करता है कि पापा या मम्मी मुझे ये, मेरे फ्रेंड के पास ये, मुझे भी ये चाहिए, तो आप क्या करोगे? इफ़ यू आर प्रॉस्पेरियस, 2-3 बार मना करोगे लेकिन आप उसको दिला दोगे फाइनली. तो अगर आप ऐसा करें, इट्स नॉट अबाउट एप्पल फ़ोन ओनली, अब वो किसी छोटी सी चीज़ के बारे में भी है. There we need to understand that need and want thing, कि बच्चे की नीड क्या है, उसकी want. If your child has a bicycle to ride and if he demands for a bike, what will you do? You will just bram that, okay, इस एग्जामिनेशन में अगर अच्छे मार्क्स आए तो मैं आपको ये बाइक दिलवा दूंगा. But you are doing that ना, आपने मना नहीं किया. You never said no. आपने उसको बोला कि ठीक है, be ready, mentally prepare, आप ये करोगे तो मैं वो दूंगा. एक तो ये कि वो उस मेंटालिटी से हो जाएगा कि नहीं मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको कंफर्ट जोन में डाल रहे हो कि ये चीज़ तो आपको मिल ही जाने वाली है, बट आपको ये थोड़ा सा मेहनत करना है. ठीक है, आप दिलाओ बेसिकली, बट उससे पहले नो बोलना सीखो. क्योंकि अगर आप अभी नो नहीं बोलोगे तो वो फ्यूचर में उस नो के लिए रेडी नहीं होगा. ही विल नेवर बी आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप छोटे थे, एंड बिलीव मी, आप ये चीज़ मानो या ना मानो, दिस इज फैक्ट, जब हम लोग छोटे थे, मैं छोटी थी, आप छोटे थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें सेविंग सिखाई थी या नहीं सिखाई थी? आप ये बताओ. सिखाई थी, ऑब्वियसली सिखाई थी. हमें वो गुल्लक ला के देते थे, ठीक है, जो मिट्टी से बने होते हैं, और उसमें सेविंग सिखाई जाती थी. वो किस लिए होता था? ऑब्वियसली गुल्लक खरीदता है कौन है? टूट जाने वाली चीज़ है. दिस इज नॉट फॉर लॉन्ग पर्पस. लेकिन वो हमें दिया जाता था, क्यों? ताकि हम कॉइन्स इकट्ठे करें और सेविंग की वैल्यू सीखें. तो हमने हमारे अंदर ये गुण अडॉप्ट किया है, ये ट्रेट अडॉप्ट किया है, दैट वी आर वेरी इकोनॉमिकल. हम लोग सोच समझ के खर्च करते हैं, हम लोग फिजूल खर्ची नहीं करते. क्या हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऐसी होगी? नो, दे वॉन्ट बी. वो नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? बिकॉज हमने उनको इतनी कंफर्ट जोन दे रखी है. मुझे कुछ पेरेंट्स कहते हैं जब मैं समझाती हूँ तो कि ये क्या बात हो गई कि फ्यूचर में बच्चे को प्रॉब्लम ना हो या हो, मतलब आज उसको क्यों ख़राब करें? मतलब आज जो मैं कर सकती हूँ द बेस्ट फॉर माई चाइल्ड, वाई कांट बी? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? दे देना चाहिए. बट यही तो क्वेश्चन है ना कि आप आज उसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने दे रहे हो, आज आप उसको मना नहीं कर रहे हो, नो नहीं बोल रहे हो, तो फ्यूचर में जाकर वो किसी भी नो के लिए रेडी नहीं होगा, वो कभी भी सेविंग नहीं सीखेगा. आपको ये समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो गुल्लक से सेविंग सिखाई थी, तो हम लोग इतने सेविंग के प्रति बहुत कॉन्शियस हुए हैं. हम लोग इकोनॉमिकल खर्चे करते हैं, सोच समझ के खर्चे. क्या हमारे बच्चे ऐसे करेंगे? क्या हम लोग उनको ऐसी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं? आर वी प्रोवाइडिंग देम सच काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग? नो. क्या हम लोग अपने बच्चों को सेविंग सिखा रहे हैं? हम लोग तो स्पेंडिंग सिखा रहे हैं. इनफैक्ट ये वेस्टर्न कल्चर अपना लिया, पॉकेट मनी. आपको पता है ये पॉकेट मनी का कब से आया सिनेरियो? आफ्टर 95. यस, आई रिमेंबर बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ चाइल्ड. सो बेसिकली बिकॉज आई वॉज अ 90s किड, तो मुझे याद है कि 95 में ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ था पॉकेट मनी का, और ये फैशन तब से लेकर आज तक कंटिन्यूड है. इट्स कंटिन्यूड टिल यट. बाय बिकॉज हमें बड़ा ये स्टाइल आइकॉन लगता है कहीं ना कहीं. हम अपने ये स्टेटस सिंबल बना लिया हमने इसको कि हमारे बच्चों को हम इतनी पॉकेट मनी देते हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं सोसाइटी है, ह्यूमन इज अ मैन इज अ सोशल एनिमल, तो ये चलता रहता है, सब करते हैं वैसे ही.
तो इसी की वजह से हम लोग बच्चों को सेविंग नहीं सिखा रहे, स्पेंडिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि उसको इतना मिलता है तो मैं इतना बढ़ा के दूंगा, और ये तुम्हें क्या करना है, हम लोग क्यों दे रहे हैं, खर्चने के लिए दे रहे हैं। आप कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, चीज़ें खरीद के खाओ, ठीक है, फिजूल खर्ची करो, बच्चों को भी इसी में मज़ा आता है, उन्हें भी नहीं पता कि फ्यूचर में वो क्या बनने वाले हैं। सो वी डोंट नीड देम टू बी ब्लास्टर, हमें उन्हें ब्लास्टर नहीं बनाना। सो अभी भी वक्त है, अगर हमने अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए तो ये उनके लिए भी, दिस वॉन्ट बी गुड फॉर देम ऑल्सो। और कहीं ना कहीं वी पेरेंट्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर किड्स, तो हमें अभी से ही इस चीज़ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग इस पे वर्क नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जा कर के हमारे बच्चे और भी ज़्यादा फिजूल खर्ची हो जाएंगे, और वो कभी भी इकोनॉमिकल खर्चे सोच समझ के नहीं करेंगे, नेवर नेवर। सो इसीलिए आपको अपने बच्चों को नो बोलना और क्या करना। सो इफ वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, टू बी अ गुड सिटीजन, सो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप भी कुछ चाहें अपने व्यूज़ को मुझ तक पहुँचाना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, खास करके उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे छोटे भी हैं, तो आप उनको कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर मना मत करो कि मैं नहीं दूंगा, या फिर आप उनको डांटो नहीं। प्लीज़ डोंट स्कोल्ड देम, आंसर देम व्हाटएवर दे आस्क। और जो टीनेजर्स पेरेंट्स हैं, टीनेज के बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे मेरा ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को वो गैप मत दीजिए कि आपसे चीज़ें छुपाए। और कभी भी अगर इफ़ नो मैटर शी इज़ अ गर्ल और बॉय, आप उनको अगर ये स्पेस दोगे तो वो अपने लाइफ में होने वाली बुरी और अच्छी से अच्छी चीज़ों को दे विल कम एंड शेयर, दे विल नॉट गेट हेजिटेटेड, वो कभी भी हिचकेंगे नहीं। और ये हिचकने से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको भी पता है सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, बाहर में हो रहा है, आप देख सकते हो, हमारे यहाँ भी हो रहा है। सेम सिचुएशन इज बीइंग कैरिड अवे। बच्चे जो चीज़ें छुपाते हैं, बाद में पता चलता है कि एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया, तो हमें उस चीज़ से स्किप करना है। सपोज कि कोई आपकी बेटी है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल एंड समवन इज बुलिंग हिम। अगर आपकी बेटी है, वो स्कूल जा रही है या कहीं पे भी जा रही है, रास्ते में कोई इसको बुली कर रहा है, घर आके अगर सपोज वो आपको बताती है तो आप क्या करते हो, उसी को डांटते हो कि चुपचाप सीधे चलो, लोगों का काम है ये बोलना। तो आप ये उन लोगों को बढ़ा भी रहे हो और इसको डिमोरलाइज भी कर रहे हो कि यार मेरी गलती है। तो वो कभी भी आपको आके चीज़ें नहीं बताएगी और कहीं ना कहीं ये इसके लिए खतरा होगा। सो ये बेसिक चीज़ें तो हम लोग समझते हैं, बट हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, सेम चीज़ ट्रैक पे चले जाते हैं, और गर्ल्स को तो स्पेशली हमने और कमज़ोर बना रखा है। सो दिस इज़ नॉट गुड। सबसे ज़रूरी यही है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लीज़ ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, बच्चों पे भरोसा करो, क्योंकि अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो बेसिकली आप उनको भी ये छूट दे रहे हो कि वो आप पे ट्रस्ट ना करें और वो आपको चीज़ें आके ना बताएं। और ट्रस्ट मी, अगर कुछ बुरा ना हो इसके लिए वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, हम लोगों को पहले से रेडी होना होगा, बिकॉज ट्रस्ट मेक्स अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। आपको भी पता है, विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता बनाता है। तो अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए ताकि वो आप पर विश्वास कर सके। और प्लीज़ फॉलो एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रही कि ब्लाइंड फॉलो कीजिए आप, ये जो मैंने 4 स्किल्स आपको बताए हैं और ये चारों पॉइंट्स पे आप सोचिए पहले, ठीक है, थिंक अबाउट इट, और उसके बाद ये आपका डिसीजन है व्हाट यू वांट फॉर योर चाइल्ड, आपको अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए। एंड दोज 4 थिंग्स आर अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, से नो टू योर चाइल्ड, समटाइम्स ट्रस्ट योर चाइल्ड, फिल द गैप। ये चारों स्किल्स पे यू हैव टू वर्क एंड वी हैव टू मेक their future very bright, because I also love my children, I also love my students, and I want their future to be bright and I want to correlate with their parents। मैं आप सबके साथ जुड़कर उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर के, हम सब मिलकर के अपने भारत को, अपने इंडिया को एक बेस्ट जनरेशन दें, मोरली रिटायर्ड जनरेशन है, बेस्ट जनरेशन, जो अपने बड़ों, अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी की रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट दे एंड रिस्पेक्ट ले, टू गिव रिस्पेक्ट एंड टू टेक रिस्पेक्ट, क्योंकि आज वो रिस्पेक्ट देंगे तो फ्यूचर में उनको भी रिस्पेक्ट मिलेगी।
This is the very true thing, and you know that. So please be with me. Stay connected. Whatever you want to write in the comment section, you can share your feelings, you can share your expressions, and whatever the feedback is about this session, आप मुझे लिख सकते हैं. और किसी भी और टॉपिक पर, like child adolescence or whatever it is, the teenager problems, you can, if you have any kind of problem, you can write it in the comment section. I will try to make another video and share with you. So thanks for watching this, and please do favor your child so that I could favor them. Being a teacher, I want my generation to be best, and being the parents, you also need to. So I will be always there for you. Thanks for watching, and try to share this video as much as you can. Bye bye. Take care. Jai Hind, Jai Bharat. Audio Jungle.